So, Jai Sri Krishna, Jai Mahesh. Very good evening to all of you. मैं विकास शारदा आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि वसीयत एक ऐसा विषय है जो सभी व्यक्ति से आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संबंधित है। एंड इन a country like India, where most of the businesses are, say, family run, family owned, this will wasiyat, that becomes a very important subject. In fact, I'd like to share something that if there is a will, then the succession of your property would always be as per your will, which means कि अगर आपके पास कोई वसीयत है तो आपका सक्सेशन जो है always it will be आपके इच्छा के अनुसार। तो इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए एम सर्कल in association with Sri Maheshwari Sabha Chennai has organized this event. So let me assure you that this event will definitely enrich your knowledge on this subject. Okay, so before we start this particular event, we will play a prayer song. So just give me a moment. I request all participants to go on mute, please. Thank you. Kai Bhojan. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। Okay. So now I would like to invite the president of Sri Maheshwari Sabha Chennai, Sri Pramod Ji Malpani Ji, to give his opening remarks for this event. जय श्री कृष्ण। वसीयत पर विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए जूम पर उपस्थित आप सभी का श्री महेश्वरी सभा चेन्नई हार्दिक स्वागत करता है। आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एम सर्कल चेन्नई ने वसीयत पर समाज के सभी वर्ग को जानकारी देने के लिए खेतान एंड कंपनी के वक्ता विशेषज्ञ बीजल जी, आदिति जी और सचिन जी का चयन किया है। उसके लिए उनका और वक्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं एम सर्कल चेन्नई के अध्यक्ष श्री आशीष जी झवर व उनकी पूरी टीम, आज के प्रोग्राम के चेयरमैन विकास जी शारदा व उनके साथीगण, महेश्वरी सभा से कोऑर्डिनेटर श्री श्री मोहन जी दम्मानी व अनुराग जी महेश्वरी, आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उपस्थित बंधु बहनें और समाज के सभी वर्ग के सदस्य इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। जय श्री। Thank you, sir. Now I would like to invite the president of M Circle Chennai 1, the Ashish Jhawar, to speak about this event and then welcome the gathering. Thank you, Vikas. And आप सबको मेरा प्रणाम और दिल से हार्दिक स्वागत है। तो good evening, ladies and gentlemen, and it cannot be a better beautiful Sunday evening. A time well spent on a very important topic, I should say. And we are very glad to see
32 cities participating in today's event, along with 450 plus registrations that we have received. So M Circle, in association with Sri Maheshwari Sabha Chennai and its fellow associations, M Circle Sholapur chapter, and also our fellow our Aurangabad Zilla Maheshwari Yuva Sangathan warmly welcomes everyone here. तो हमने ये विषय क्यों चुना? ये एक ऐसा विषय है where we realize कि इतने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इतनी सारे शंकाएं हैं, इतने सारे डाउट्स है, और ये क्या सही उम्र है विल लिखने की? ऐसे कई सवाल आएंगे। और मेरी तो आशा ये भी है कि आज तक अगर फैमिली ने मिलके इस विषय में बात नहीं की, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमको बात करने में संकोच होता है एंड एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है। So M Circle has always, with its objective of connecting, fellowship and doing business, is come to you with many such programs. Our objective is always enabling others to succeed. बस मेरी यही कामना है कि आपके ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर आज मिले और आप इस सेशन के बाद अपनी विल जरूर लिखिए, क्योंकि उसका लिखने का कोई सही समय नहीं है। Thank you so much and welcome you all once again. Over to you, Vikas. Yeah, thank you, Ashish. Yeah, so in order to enlighten all of us in this particular, the important topic, so we have with us the expert team from Khaitan and Company, which is a renowned law firm of India, which specialize on the subject like succession planning, direct and indirect taxes, financial planning, international laws, and etc. etc. So we have 3 members team from Khaitan and Company. So let me introduce first Bijal. She is the partner with more than 20 years of experience as a private client practitioner. Bijal has varied experience in advising individuals and family businesses, both from a legal, regulatory, and the tax perspective on succession planning and asset protection. Over the years, the Bijal has developed deep understanding of fund space, and then advises the client on fund formation, advice related to fund structuring, etc. So we also have another partner from Khaitan and Company. She's Aditi. She specializes in direct tax, private client, practice groups in Khaitan and Company. She works closely with the high net worth individuals to plan their succession in Indian state. She regularly advises the clients on succession law and their applicability. And along with them, we also have Sachin, who is a senior associate at Khaitan and Company. So let's welcome all this, the 3 members team from Khaitan and Company. So, so before I hand over this session to them, let me make a very important announcement that if any participant has got, any question on this will succession planning, so I would request that you please post your question on chat box. So we are going to pick up only those questions which are there in chat box, and those would be answered by our expert as much as possible. We will do that once the presentation from the team of Khaitan and Company is over. So I would like to now hand over the the session to Khaitan and Company and their team. Over to you, the team of Khaitan and Company. Thank you so much for the very warm welcome. नमस्ते देवियों और सचिनों। आज के इस कॉन्फ्रेंस के दौरान खैतान एंड कंपनी की तरफ से हम आपको अपनी संपत्ति की देखभाल और अपने पश्चात
उस संपत्ति के बंटवारे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हम अपनी संपत्ति का बंटवारा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। संपत्ति का बंटवारा करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि विल या वसीयत बनाना, गिफ्ट करना या ट्रस्ट बनाना। इन डॉक्यूमेंट्स को बनाते समय हम यह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी मृत्यु के बाद अपने परिजनों को या अपनी उत्तराधिकारी को यह संपत्ति मिलने की सुविधा हो। हम आपको ऐसी कदमों के बारे में बताएंगे जिससे अपने परिजन वह संपत्ति आसानी से अपने नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए किस तरह की पेपर बनाने चाहिए, पेपर बनाते समय क्या सावधानी लेनी चाहिए, यह हम आपको बताएंगे। अब अदिति और सचिन आपको वसीयत के बारे में जानकारी देंगे। Thank you, Vijay. Good evening, everyone. And thank you for joining us on this Sunday evening. We would like to specially thank the organizers and the members of the M Circle for giving us this opportunity. With that, we'd like to start with our presentation. On the first slide, ये कार्टून जरूर है, but यहाँ पे दर्शाता है कि आज के जनरेशन का क्या थिंकिंग है। इस स्लाइड पे अपने बेटे अपने फादर से कह रहे हैं कि मनी तो ठीक है, बट ऑल आई वांट इज द पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे कब मिलेगा? इस पॉइंट को लेके हम 2-4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बताना चाहते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस आज की डेट पे रेलेवेंट कंसिडरेशंस है जब सक्सेशन प्लानिंग और बिजनेस का सक्सेशन हम कंसिडर करते हैं। स्लाइड 2 पे 4 सच इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं। पहला तो ये है कि फोकस ऑन फोरसाइट एंड अवेयरनेस बढ़ रहा है। इंडियन फैमिलीज और सोसाइटी में द डिस्कशन ऑन वसीयत एंड प्लानिंग सक्सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। सक्सेशन प्लानिंग एक तरीका है जिस माध्यम से सीनियर जनरेशन अपने नेक्स्ट जनरेशन को अपनी प्रॉपर्टी और एसेट्स ट्रांसफर। ये प्रोसेस बहुत ही जरूरी है। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये स्मूथ तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए विथ एज लेस लीगल प्रॉब्लम और लीगल इश्यूज and to maintain family unity and family harmony. अंग्रेजी में एक कहावत है, death and taxes are the only two certain things. I think हमारे एक्सपीरियंस में अभी इस कहावत को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है सक्सेशन प्लानिंग के डिस्कशंस में। प्रमोटर्स और पेट्रियार्क्स जो फैमिली के हेड ऑफ द हाउस होल्ड कहे जाते हैं, उनको ये जरूरी हो गया है कि उनके लाइफ टाइम के बाद बिजनेस कौन संभालेगा, कैसे संभालेंगे, और जो भी वैल्यूज और जो भी कंसिडरेशंस है जिसके वजह से ब्रांड या बिजनेस बड़ा है वो सुरक्षित नेक्स्ट जनरेशन में सुरक्षित हो सके। तो प्रोटेक्टिंग योर लेगेसी, प्रमोटर्स ने अपनी पूरी जिंदगी हार्ड वर्क और मेहनत से ये बिजनेस और ब्रांड जो बिल्ड किया है, बोथ एक्सटर्नल पार्टी के क्लेम्स या वो क्रेडिटर्स हो या कोई और हो या फिर इंटरनल फैमिली के मेंबर्स के तरफ से भी कोई चैलेंज या कोई केस या लीगल सिचुएशन नहीं अराइज हो। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जो हम नोटिस कर रहे हैं इस प्रैक्टिस में वो है कि पुराने जमाने में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज या HUF जो कहा जाता है वो बहुत ही पॉपुलर माध्यम था टू पास ऑन एसेट्स एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर टू सन या फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। अभी लीगल कंसिडरेशंस, लीगल अमेंडमेंट्स के वजह से एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट एन HUF क्रिएट्स, HUFs अभी पॉपुलर नहीं रही। इनफैक्ट
मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज एंड प्रमोटर्स ये चाहते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो जॉइंट प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं वो डिवाइड हो जाए, डिसॉल्व हो जाए और मेंबर्स या वारिस के बीच सही तरीके से बंटवारा हो जाए इन देयर लाइफ टाइम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ये सक्सेशन अभी कानून में हाउ इज इट ट्रीटेड, कैसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन कैसे ट्रांसफर होता है. इंडियन लॉज रिकॉग्नाइज 2 मोड्स ऑफ सक्सेशन. एक तरीका होता है जहां पे वसीयत नहीं है, तो कानून प्रिस्क्राइब करता है कि किस एयर या किस वारिस को कितना प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हिंदू मेल का डेथ हो जाता है, हिज प्रॉपर्टी और जो भी एसेट्स है ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ, लीगली कानून वो उसके क्लास 1 एयर्स इक्वली डिवाइड कर देता है. क्लास 1 एयर्स इज ऑल्सो डिफाइंड, कानून में प्रिस्क्राइब किया हुआ एक टर्म है अकॉर्डिंग टू विच उस हिंदू मेल मेंबर के मदर, वाइफ जो सर्वाइविंग वाइफ है और चिल्ड्रन को इक्वल हिस्से में बंटवारा हो जाता है. इस कानून का जो डेफिनेशन है वो अनफॉर्चुनेटली चेंज नहीं किया जा सकता. दूसरा मोड ऑफ सक्सेशन या दूसरा तरीका एसेट्स और जायदाद को बंटवारा, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का मोड है, वो टेस्टामेंट्री सक्सेशन है, यानी वसीयत के थ्रू या अपनी विल के थ्रू प्रॉपर्टी पास किया जा सकता है. अगर एक वैलिड विल है जो लीगली कोर्ट में रिकॉग्नाइज किया है, तो उस विल में जैसे ही टेस्टेटर यानी जिसने वसीयत बनाया है उनके विशेस के अकॉर्डिंग उनके स्पेसिफिक फैमिली मेंबर्स जो एयर्स माने जाते हैं उनको प्रॉपर्टी पास ऑन किया जा सकता है. उस विल में पूरे टर्म्स जैसे कि किसको कितना हिस्सा कैसे बंटवारा होना चाहिए और कब ये डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो सब रिकॉर्ड कर सकते हैं. एक डिफरेंस जो इम्पोर्टेंट है इन दोनों मोड्स ऑफ सक्सेशन में वो ये है कि वसीयत में कानून का जो प्रिस्क्राइब रूल है कि इन्हीं मेंबर को इतना ही मिलेगा वो अप्लाई नहीं होता है. तो सबको अजीम प्रेमजी या बिल गेट्स के बारे में पता होगा. उन्होंने अपने वसीयत में लिखा है, ये पब्लिक नॉलेज है, कि मेरे फैमिली को बस 1% या 10% मिलेगा, बाकी चैरिटी को जाएगा. तो दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज ओनली देयर इन द विल या वसीयत में ही ये फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है. अभी जो स्लाइड्स हैं हमने ऐसा डिवाइड किया है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और जो कॉमन प्रश्न हैं विल पे उनको हमने सेट आउट किया है और उन पे हमारी जो रिकमेंडेशंस है और आंसर्स है उनको हम डिस्कस करना चाहेंगे. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ विल, ये वसीयत क्या है. अ विल इज अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर, यानी वसीयत जो बनाने वाले हैं जो टेस्टेटर माने जाते हैं उनका जो विश या डिजायर है अपने प्रॉपर्टी या अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में ऑन द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करता है. ये डॉक्यूमेंट इफेक्टिव तब होता है ऑन द डेट ऑफ डिमाइस ऑफ द टेस्टेटर, यानी ऑफ द टेस्टेटर he or she has full control to deal with the assets and property in their lifetime. अगर वो खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी या बेचना चाहते हैं, उनके पास पूरी लीगल ओनरशिप और फ्लेक्सिबिलिटी है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल या वसीयत क्यों बनाना चाहिए? Why is it important to prepare a will? इस क्वेश्चन को हमने दो तरीके से एड्रेस किया है. एक ये है कि जानना फायदा क्या है एक विल बनाने का. ये फायदा है, सचिन इफ यू कुड प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये फायदा है कि
ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द टेस्टेटर, जैसे मैंने कहा, फुल लीगल कंट्रोल एंड ओनरशिप। तो अपने लाइफ टाइम में वो सिक्योरिटी है कि यस, ये बैंक अकाउंट मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है। तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिक्योरिटी जो सीनियर जनरेशन्स को स्पेशली बहुत ज़रूरी है, वो फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा ये पॉइंट है कि वसीयत एक सिंपल डॉक्यूमेंट है, नो स्टैम्प ड्यूटी, कोर्ट का परमिशन नहीं चाहिए बनाने के लिए, कोर्ट को बताना नहीं है, आरबीआई या फिर टैक्स अथॉरिटी को बताना नहीं पड़ेगा। सो कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी है और फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट विदाउट एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट। आप अगर हाथ से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर में टाइप करके प्रिंट कराना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो फाइन। नॉट नेसेसरी टू प्रिंट ऑन लीगल पेपर या A4 पेपर, एब्सोल्युटली फ्लेक्सिबल। अनदर इम्पॉर्टेंट एडवांटेज या वसीयत का फायदा ये है कि आज के डेट पे इंडिया डज नॉट हैव एस्टेट ड्यूटी। दस, जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू है जो विल के थ्रू या वसीयत के थ्रू पास होता है दूसरे जनरेशन को या अपने वारिस को, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है आज के डेट पे। ऑफ कोर्स हर बजट में ये चर्चा है कि एस्टेट ड्यूटी वापस इंट्रोड्यूस हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो इनकम टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स दैट इज एप्लीकेबल ऑन द विल। अनदर इम्पॉर्टेंट एडवांटेज और एक बहुत ज़रूरी फ़ायदा वसीयत का ये है कि इसको आप अमेंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आज के डेट पे एक हिंदू मेल ने अपना विल प्रिपेयर किया है, उनके कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, 2 साल या 3 साल में उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और वो उन ग्रैंड चिल्ड्रन को अपने वारिस बनाना चाहते हैं, तो यू कैन अमेंड एंड चेंज द विल। हाँ कि वकील होते हुए हम एडवाइस करेंगे कि हर दिन या हर 2 महीने अपना वसीयत चेंज करने का रिकमेंडेशन हम नहीं करेंगे, बट इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स जैसे कि बर्थ ऑफ अ फैमिली मेंबर, मैरिज या किसी का डेथ हो रहा है, तो एनुअली वन मस्ट रिव्यू योर विल। Another advantage is legally as per law registration करने की मैंडेटरी या कंपल्सरी कंडीशन नहीं है। आप जानते होंगे कि अगर हम प्रॉपर्टी रियल एस्टेट खरीदते हैं या बेचते हैं, तभी कानून ये प्रिस्क्राइब करता है कि रजिस्ट्रार के पास जाना है, रजिस्ट्रेशन फी भर के उसको रजिस्टर करना है। विल के मामले में या वसीयत के लिए ये जरूरी नहीं है। हम सबसीक्वेंट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कब registration होता है, but there is no legal requirement for registering a will. एक वसीयत में अपने सारे प्रॉपर्टी, मानो रियल एस्टेट, मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि कंपनी शेयर्स, ज्वेलरी, अपने पर्सनल आइटम्स, आर्ट, बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स, सारे आइटम्स इंक्लूड हो सकते हैं और डिफाइन हो सकता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ विल, जैसे मैंने कहा, किसी अथॉरिटी या किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके माइनर चिल्ड्रन हैं तो विल में एक और फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप गार्डियन अपने माइनर चिल्ड्रन के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं और क्लियरली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी फायदा जान के, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो विल्स में प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन हम बताएंगे कि प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है या सोल्यूशन क्या है इन प्रॉब्लम्स के। बट 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। एक है कि सम केसेस में एक प्रोबेट या फिर कोर्ट ऑर्डर जरूरी है, तो डेथ के बाद विल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए प्रोबेट की जरूरत है और वो कोर्ट ऑर्डर है। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं, बट एक तरीके का कंसिडरेशन है। दूसरा कंसिडरेशन ये है कि विल चैलेंज हो सकता है इन सम केसेस, और बिकॉज द टेस्टेटर अभी सर्वाइव नहीं कर रहे हैं या फिर उनका डेथ हो चुका है, तो प्रूविंग द वैलिडिटी ऑफ द विल बिकम्स इम्पॉर्टेंट। हाउएवर
given Khaitan and Company's experience and ऐसे situations in the past हमने देखे हैं और हमने solutions या practical tips या उपाय निकाले हैं to address these problems. Moving on to the next slide. Important question which Ashish ji alluded to in the introduction कि what is the right time to make a will? Will कब बनाना चाहिए? और ये स्लाइड में ये कार्टून ये क्लियरली कहता है कि इन शॉर्ट कल करे सो आज, आज करे सो अब. तो विल प्रिपेयर करने की कोई राइट टाइम या राइट एज या वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है. तो द सूनर यू ड्राफ्ट अ विल, द सूनर द बेटर. द एक लीगल पॉइंट है कि जो वसीयत बना रहे हैं या टेस्टेटर हैं उनको मेजर यानी 18 इयर्स के अबाव होना जरूरी है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगला प्रश्न जो जरूरी है डिस्कस करना वो है कि वसीयत में क्या इंक्लूड होता है, क्या लिखा जाता है वसीयत में. तो 4 या 5 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं. पहला तो ये एक है कि एग्जीक्यूटर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है. अभी एग्जीक्यूटर का अर्थ क्या है, कानून में ये लिखा है कि जो इंडिविजुअल 1, 2 या 3 भी हो सकते हैं, ये इंडिविजुअल टेस्टेटर के डेथ के होते हुए ओरिजिनल कॉपी ऑफ द विल लेके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. सो फॉर इंस्टेंस अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक में जाके ओरिजिनल कॉपी ऑफ द विल सबमिट करके एज वेल एज डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करके वो अपने वारिस के नाम जो आइडेंटिफाई किए गए हैं विल में उनके नाम लीगल ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे. तो एग्जीक्यूटर एक इंपॉर्टेंट रोल है. सेकेंड इज आइडेंटिफाई योर heirs, यानी वारिस को क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है. तीसरा पॉइंट है विटनेस. इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक जरूरी है फॉर अ वैलिड विल कि एटलीस्ट 2 विटनेसेस आर फिजिकली प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द विल. यानी जब टेस्टेटर वसीयत साइन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तभी विटनेस को फिजिकली प्रेजेंट होना और उनको साइन करते हुए देखना जरूरी है. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन, अगर माइनर चिल्ड्रन है या चिल्ड्रन विथ डिफरेंट नीड्स, स्पेशल नीड्स, उनके लिए स्पेसिफिक गार्डियन अपॉइंट किया जा सकता है. एंड फाइनल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव. कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है तो करें या ना करें इज अप टू अस, बट हमारा ये रिकमेंडेशन होगा कि अपने एसेट्स या अपना प्रॉपर्टी जो है वो क्लियरली डिफाइन करें सो देयर इज नो कंफ्यूजन फॉर द एग्जीक्यूटर टू इम्प्लीमेंट इट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाउ टू प्रिपेयर अ विल, उसके की स्टेप्स क्या हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए ये स्लाइड में अगर आप देखें तो टेस्टेटर जो वसीयत प्रिपेयर करते हैं उनका मानसिक स्थिति ठीक होना जरूरी है. क्योंकि अगर वो क्वेश्चन में है, फॉर एग्जाम्पल उनको अल्जाइमर्स है या फिर उनको वो प्रेशर में आके या किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर वसीयत प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये 2 ग्राउंड है टू चैलेंज द विल. तो टेस्टेटर को साउंड कैपेसिटी, जो मानसिक स्थिति बराबर होना एंड क्लियर इंटेंशन विदाउट इन्फ्लुएंस वसीयत प्रिपेयर करना जरूरी है. उसके बाद इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर को चुनना, प्रॉपर्टी को डिफाइन करना सही तरीके से, अपने वारिस को डिफाइन करना सही तरीके से, अगर गार्डियन का पॉइंट है तो उसको बताना और विटनेस को बताना जरूरी है. तो ये सारे स्टेप्स वसीयत या फिर वो लीगल डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया जाता है. Moving on to the next slide, please, which is slide 11. How does one enforce a will? तो वसीयत प्रिपेयर ड्राफ्ट हो गया है, ये सब आइडेंटिफाई करके हमने प्रिपेयर कर लिया है, एंड द डेथ ऑफ द टेस्टेटर हैपेंस. नाउ इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोबेट या कोर्ट ऑर्डर
इन सम केसेस अप्लाई होता है और उसके बिना ये वसीयत को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। सो व्हाट इज अ प्रोबेट? प्रोबेट का अर्थ क्या है? इट इज बेसिकली लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो टेस्टिमेंट्री बेंच यानी जो जजेस हैं जो इन टाइप के मामले, इन टाइप के इश्यूज जज करते हैं, उनके पास जाके ओरिजिनल कॉपी ऑफ द विल, डेथ सर्टिफिकेट, वारिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टीज का बराबर डिस्क्रिप्शन, ये सब पिटिशन में इंक्लूड किया जाता है। एंड इफ देयर आर नो चैलेंजेस एंड देयर इज नो कॉन्टेस्ट या कोई लीगली इस वसीयत को चैलेंज नहीं कर रहा है, तो दैट कोर्ट इन 6 से 8 महीने लगते हैं विल प्रोवाइड अ प्रोबेट। ये प्रोबेट ऑर्डर जरूरी है, तो हर इंस्टीट्यूशन, रजिस्ट्रार अगर रियल एस्टेट है, बैंक, म्यूचुअल फंड हाउसेस, इनको प्रोबेट दिखाएंगे तो इमीडिएटली वो लीगल ओनरशिप जो टेस्टेटर के नाम है उनके वारिस एज पर द विल उनको ट्रांसफर कर देंगे। नाउ ये प्रोबेट एज पर इंडियन लॉ तभी कंपल्सरी है जब वसीयत 3 सिटीज में बनाया साइन किया जाता है, तो दैट इज कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। या फिर अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट है इन 3 सिटीज में, तभी प्रोबेट कंपल्सरीली अप्लाई करना जरूरी है। प्रोबेट का फीस भी होता है, तो आई थिंक इन मद्रास अभी 2017 में रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है that the probate fees is up to 25,000 rupees and बॉम्बे में it's up to 70,000 rupees। कई दूसरे स्टेट्स अगर टेस्टेटर ने लिखा है कि प्रोबेट ऑर्डर लाना जरूरी है, तो वहां पे परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स भी फिक्स किया जाता है। सो प्रोबेट इज अ सिंपल प्रोसेस as long as it is not litigated। Now अगर किसी ने न्यूज़पेपर में नोटिस जो दिया जाता है कि किसी का डिमाइस या किसी का डेथ होता है और अगर उनके कोई एयर्स हैं, तो प्लीज आगे आके बताएं कि आप इनके वारिस हैं एटसेट्रा, उनका अपॉर्चुनिटी दिया गया है। और इस अपॉर्चुनिटी में किसी ने चैलेंज किया विल को, तब जाकर वो हाई कोर्ट, उस सिटी का हाई कोर्ट में जाके लिटिगेट हो जाता है एंड दिस इशू इज लिटिगेटेड। नाउ प्रोबेट सुन के इट सीम्स लाइक अ स्कैरी एंड अ लॉन्ग लीगल प्रोसेस। हाउएवर इन आवर एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा, देयर आर प्रैक्टिकल टिप्स टू इंश्योर दैट द विल इज नॉट चैलेंज। कोई गारंटी नहीं है, बट ये 4-5 अगर प्रैक्टिकल टिप्स हम फॉलो करते हैं, तो इवन इफ देयर इज अ चैलेंज, वो सक्सेसफुल नहीं हो, शुड नॉट बी सक्सेसफुल, इन दैट विल को वैलिड प्रूव करना आसान हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी चैलेंज, एक विल या वसीयत को चैलेंज कैसे करते हैं, इनको ये 4-5 पॉइंट है जिनके ग्राउंड पे एज पर केसेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केसेस, ये 4-5 ग्राउंड है जिसके मुताबिक विल को इनवैलिड किया जा सकता है। तो 1 इज, जैसे मैंने कहा, मानसिक स्थिति ऑफ द टेस्टेटर, ही मस्ट हैव साउंड लीगल माइंड। अगर प्रूव किया जाता है कि वो प्रेशर में आके उन्होंने ऐसे ड्राफ्ट किया है, then the will can be declared invalid। Second is forging signature। अगर सिग्नेचर नकली है या फिर पेजेस मिसिंग हैं और विल का ओरिजिनल कॉपी देख के ऐसे लग रहा है कि पेजेस हटाए गए हैं, तो फिर वो अगेन लिटिगेट हो सकता है। तीसरा ये है कि इफ the heirs between themselves create certain issues wherein they mention that the testator ने actually एक will prepare करके दूसरे टाइम पे दूसरे will prepare करके 2 कॉपी है will के, तो फिर वापस वो लीगल चैलेंज हो सकता है। So keeping in mind all this, खेतान एंड कंपनी की प्रैक्टिकल टिप्स क्या है टू ट्राई एंड मिटिगेट या कंट्रोल ऐसे टाइप के चैलेंजेस, वो है एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग।
at the time of drafting, पहले तो it is important to, because will का कोई format नहीं है, please prepare your will या वसीयत उस format में बनाओ in the language you are comfortable. ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही होना चाहिए या फिर हिंदी में ही होना चाहिए. If you prefer another language, regional language, please prepare the will, draft the will उस language में where the testator is comfortable. Second important thing is clearly outline all your properties and estate. This will help because जब डेथ होता है फैमिली में बहुत इमोशनल टाइम रहता है एंड मोस्ट ऑफ द heirs एंड फैमिली मेंबर्स आर नॉट इन अ स्टेट टू इमीडिएटली टॉक अबाउट विल, प्रॉपर्टी एटसेट्रा. तो इट विल बी हेल्पफुल अगर एग्जीक्यूटर्स को ये डिस्क्रिप्शन क्लियरली दिया जाता है कि ये प्रॉपर्टीज हैं और इनको इस ऐसे टाइप, इस प्रोसेस में और इस मैनर में मेरे वारिस को ऐसे डिवाइड करना. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. थर्ड पॉइंट इज काफी फैमिलीज में समटाइम्स अगर 2 बच्चे हैं और एक सन या डॉटर को ड्यूरिंग द लाइफ टाइम टेस्टेटर ने काफी गिफ्ट्स दिए हैं, काफी प्रॉपर्टीज दिए हैं, तो किसी का मानना है कि अपनी वसीयत में वो उनको ना इंक्लूड करे. तो अगर ऐसे कर रहे हैं, we must include reasons, proper reasoning कि इनको क्यों include नहीं किया गया है वो लिखना जरूरी है. फिर total number of pages, initialing on all pages, ये सारे जरूरी aspects हैं. Coming to the time of actually signing, not drafting, signing the will, विटनेस को चुनना जरूरी है. विटनेस वो होते हैं अगर लीगल चैलेंज होता है, कोर्ट उनका स्टेटमेंट लेता है कि एट द टाइम ऑफ साइनिंग टेस्टेटर किस हालत में थे, कैसे हुआ प्रोसेस ऑफ साइनिंग, और क्या आपको लगता है कि ये ओरिजिनल विल बराबर है या इसको टेम्पर किया गया है. सो विटनेसेस जनरली अगर फैमिली मेंबर्स ना हो तो एडवाइजेबल है. कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इट हेल्प्स क्योंकि वो वेल विशर थर्ड पार्टी हैं जो ऑनेस्टली अकाउंट दे सकते हैं कि द विल साइनिंग प्रोसेस वाज करेक्ट. सिमिलरली विटनेसेस अगर यंगर जनरेशन के हैं जो टेस्टेटर को सर्वाइव करते हैं, देन दैट इज अ प्रैक्टिकल टिप. In order to mitigate any other questions on capacity of testator, so for instance, the मानसिक स्थिति of the testator is in question, videotape करना process को of signing, then that is most advisable. In fact, खैतान कंपनी में ये ट्रेंड हमने नोटिस किया in the past 4-5 years, where सारा प्रोसेस जहाँ पे लॉयर्स विल को, वसीयत को रीड करते हैं, पूछते हैं कि जो टेस्टेटर हैं आपको समझ में आई हैं, आप इससे सहमत हैं, और साइनिंग विटनेसेस के साथ पूरा वीडियो रिकॉर्ड होता है, और जहाँ पे ओरिजिनल कॉपी ऑफ द विल स्टोर करते हैं, इस वीडियो टेप को भी स्टोर कर सकते हैं. मेडिकल सर्टिफिकेट एक और उपाय है टू मिटिगेट एनी challenges, and registration तभी जरूरी है जब आपको 99% श्योर है कि ये वसीयत या विल चैलेंज हो सकता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. दूसरे जो टिप्स या एडवांटेजेस या फायदे हैं विल के, एक है वैल्यू विल. वैल्यू विल वो होता है जो एक इमोशनल लेटर होता है फ्रॉम द टेस्टेटर टू द फैमिली मेंबर्स. उसमें कोई लीगल एनफोर्सेबल टर्म्स नहीं होते. उनमें टेस्टेटर ये एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे फैमिली वैल्यूज मेरे जाने के बाद या मेरे बिजनेस मेरे जाने के बाद इन 4-5 कंसिडरेशंस लेके प्लीज फैमिली को हार्मोनियसली and in a unified manner next generation को pass on करे. Notarized copy of the will, कई बार ये हो सकता है कि original copy destroy हो सकता है, fire, water, misplace हो जाता है, तो it is advisable to just have one notarized copy of the will, because then that
can be produced in court. Other important tips है आज के डेट पे given globalization and digitization, digital assets जो हैं वो भी cover किया जा सकता है. And if at all एक important life event होता है, जैसे कि मैंने कहा marriage, birth in the family और death in the family, अपनी वसीयत को रिवाइज करना या रिविजिट करना जरूरी हो जाता है. With that, I would like to now invite Sachin to discuss the other aspects. Thank you, Aditi. अब मैं बात करूंगा, आपने अदिति से सुना कि कैसे एक विल को अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे विल को अच्छे से ड्राफ्ट कर सकते हैं. मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको देना चाहूंगा. ये विल से भी रिलेटेड हैं और ये कुछ जनरली आपकी एस्टेट एंड सक्सेशन प्लानिंग एक्सरसाइज से भी रिलेटेड हैं. पहली चीज जो हमने बात करी इस प्रेजेंटेशन के दौरान वो था कि आपको एक एसेट्स एंड लायबिलिटीज का कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट तैयार करना चाहिए. जनरली लोग ये प्रॉब्लम करते हैं कि सिर्फ एसेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. वाइल ये एक अच्छी प्रैक्टिस है एटलीस्ट एसेट्स आइडेंटिफाई करना, मेरे एक्सपीरियंस में एंड खैतान एंड कंपनी के एक्सपीरियंस में भी आई थिंक इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज को भी आइडेंटिफाई करें. आप बहुत सारे लोग बिजनेस रन करते हैं, बहुत सारे लोगों का फैमिली रन बिजनेस होता है, इसलिए एडवाइजेबल है कि बिजनेस एंड पर्सनल एसेट्स को अलग रखा जाए. पर बिजनेस एंड पर्सनल एसेट्स को अलग रखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई पर्सनल गारंटी दी हुई है या फिर आपके बिजनेस एसेट्स जो हैं वो किसी को एज मॉर्गेज या तो बिजनेस एंड पर्सनल एसेट्स को अलग रखने से आपके बिजनेस एसेट्स और पर्सनल एसेट्स दोनों प्रोटेक्टेड रहते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हो तो आपके पर्सनल एसेट्स अटैच नहीं होंगे, इसलिए एडवाइजेबल है कि बिजनेस एंड पर्सनल एसेट्स को अलग रखा जाए. HUF एसेट्स, आपका शेयर HUF प्रॉपर्टी में, HUF एसेट्स में एक विल के थ्रू बिक्वीत किया जा सकता है. आप अपनी लायबिलिटीज, जैसा मैंने आपको बताया, एक पेपर पे अच्छे से जहां पर भी आपको सेफ लगता है वो लिख के रखें. आप अपने एसेट्स भी वहां पर एक अच्छी लिस्ट और एक डिटेल्ड लिस्ट बना के रखें. एंड इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप आइडेंटिफाई करें एडवांस में कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी या एसेट्स हैं जो आप रीजनेबली इनहेरिट कर सकते हैं. उनके लिए भी आगे प्लानिंग करनी जरूरी होती है, इसलिए रेकमेंडेड है, ये प्लानिंग अहेड की जो टिप्स हम आपको दे रहे हैं, रेकमेंडेड है कि प्रॉपर्टी जो आप इनहेरिट करें उसको भी आप आगे कैसे प्लान करना है उसके लिए एन्यूमरेट और लिस्ट आउट कर लें. एक और चीज जो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं और बहुत सारे लोग जिनको इसमें इशू कभी कभी आ जाता है, वो होता है कि लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अगर उन्होंने किसी एसेट का नॉमिनी अपॉइंट कर लिया है तो वो एसेट टेकन केयर ऑफ है. हमारे एक्सपीरियंस में हम आपको ये कहना चाहेंगे कि नॉमिनेशन बहुत सारे एसेट्स के केस में सक्सेशन के सेम लेवल पे नहीं होता है. नॉमिनी जो आपके एसेट का होगा वो सिर्फ उस एसेट को एज ए ट्रस्टी होल्ड करता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए मेरा एक फ्लैट है, उस फ्लैट का नॉमिनी मैंने मान लीजिए अपने बेटे को अपॉइंट किया है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि मेरे बेटे को वो फ्लैट मेरे जाने के बाद डेफिनेटली मिलेगा. मेरे बेटे को वो फ्लैट सिर्फ एज ए ट्रस्टी मिलेगा मेरे लीगल एयर्स के लिए. और अगर मैंने अपनी विल में ये प्रोवाइड किया हुआ है कि मेरा ये फ्लैट मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ को मिलना चाहिए या मेरे दूसरे बच्चे को मिलना चाहिए, तो वो फ्लैट मेरे विल के थ्रू जाएगा, ना कि एक नॉमिनेशन के थ्रू. इसलिए रेलिवेंट ये है कि आप उसी इंडिविजुअल को नॉमिनी रखें जो आपकी विल में सक्सेसर है. मान लीजिए मुझे अपना फ्लैट मेरे छोटे बेटे को देना है, तो रेकमेंडेड ये है कि मैं अपने विल में भी उसी को एज अ टेस्टेटर बनाऊं और नॉमिनेशन पेपर्स में भी मैं उसको एज ए नॉमिनी अपॉइंट करूं. इससे होगा ये कि आप फ्यूचर में ये डिस्प्यूट सिचुएशन अगर कभी आता है नॉमिनी और सक्सेसर के बीच, तो वो अवॉइड किया जा सकता है. इस रूल के ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और क्लोज रिलेटिव्स अगर आपके नॉमिनी हैं, क्लोज रिलेटिव्स एक टर्म है तो इंश्योरेंस एक्ट में ही डिफाइंड है, आपके स्पाउस, आपके फैमिली मेंबर्स एक्सेट्रा, उस केस में नॉमिनेशन, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में, सक्सेशन को ओवरराइड करेगा. बाकी अमूमन हमने देखा है बाकी सारे एसेट्स के केस में नॉमिनेशन सक्सेशन को ओवरराइड नहीं करता है. इसलिए रेकमेंडेड है कि आपके नॉमिनी और आपके लीगल एयर्स अलाइंड हो, सिंक में हो और एक ही हो.
कुछ और कंसिडरेशंस जो रेकमेंड करते हैं प्लानिंग अहेड के दौर पे, वो है कि आप अपने बिजनेस प्लान को भी रिविजिट करते रहें। जरूरी है कि नॉट जस्ट आपके पर्सनल एसेट्स, आपकी पर्सनल होल्डिंग्स, आपके बिजनेस एसेट्स एंड होल्डिंग्स को भी, उनकी एस्टेट प्लानिंग को भी, उनकी सक्सेशन प्लानिंग को भी आप कंटिन्यूसली रिविजिट करते रहें, आप उसको प्लान करते रहें और मॉडिफाई करते रहें। अगर आप ऑर्गन डोनेशन का डिजायर रखते हैं, जो आजकल काफी कॉमन है और काफी देखा गया है, तो एलैबोरेट करने की जरूरत है, या तो आपके विल में, या फिर जैसा अदिति ने एक वैल्यू विल के बारे में बात किया, उस वैल्यू विल में, या एक सिंपल साइड लेटर के थ्रू आप एलैबोरेट कर सकते हैं अगर आपका डिजायर ऑर्गन डोनेशन का है तो। एक और चीज जो हम हाईली रेकमेंड करते हैं, ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑब्वियसली कहीं आपको ये लॉ के अंडर रिक्वायरमेंट कहीं नहीं आएगी, पर जरूरी है कि आप एक फाइल रखें जिसमें आप अपने एसेट्स की, अपनी प्रॉपर्टी की, अपने लॉयर की, किसने आपका विल बनाया है, आपके विटनेसेस कौन है, वो कहाँ रहते हैं, उनका फोन नंबर, एड्रेस क्या है, उन सब को एक फाइल में रखें। नेसेसरी है इस फाइल को मेंटेन करना और रेगुलरली अपडेट करना, क्योंकि होता यह है कि अगर फैमिली में कोई अनटूवर्ड सर्कमस्टांस आ जाता है, कोई डेथ या किसी और तरह की आपत्ति आ जाती है, तो उस फाइल में आपके जो लीगल एयर्स हैं, इंक्लूडिंग आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, मे बी आपकी वाइफ, आपके बच्चे जो भी हैं, उनको उस फाइल में सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एक ही जगह पे मिलेगी, एंड वो उस मुश्किल की घड़ी में जो ऑलरेडी आपका फैमिली गो थ्रू कर रहा है, वो बहुत जरूरी है और बहुत कारगर साबित होती है। इसलिए ये कुछ रिकमेंडेशंस है हमारे प्लानिंग अहेड के तौर पे। हमने विल के बारे में डिटेल में बात किया है। एक और चीज जो हम रेकमेंड करते हैं, एंड मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस बात पे भी ध्यान दें कि विल के अलावा एस्टेट प्लानिंग के और भी तरीके होते हैं, जो कि एक गिफ्ट भी होता है, और बहुत सारे लोग आजकल की डेट में एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर भी रेकमेंड करते हैं। बहुत सारे लोग ट्रस्ट स्ट्रक्चर को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। हम ब्रीफ में बात करेंगे एक विल, गिफ्ट और ट्रस्ट में डिफरेंस क्या होता है। पहला क्राइटेरिया जो हमने लिया है बात करने के लिए, वो है कंट्रोल का क्राइटेरिया। जिसके पहले कि मैं इस क्राइटेरिया में जाऊं, मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूंगा कि ट्रस्ट होता क्या है। बेसिकली ट्रस्ट एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप मानिए एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, एक रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस, जो एक पार्टी जो कि सेटलर होता है, वो दूसरी पार्टी पे एम्पावर करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आज मुझे एक ट्रस्ट बनाना है, मान लीजिए मैं सेटलर बनना चाहता हूं, तो मैं एक ट्रस्ट सेटल करता हूं। ये कॉन्फिडेंस मैं एक दूसरे आदमी पे देता हूं जो कि मेरे ट्रस्ट का ट्रस्टी होगा, बेनिफिट ऑफ बेनिफिशरीज के लिए। मान लीजिए मेरे बच्चों के लिए अगर मुझे ट्रस्ट बनाना है, तो वो बेनिफिशरीज होंगे उस ट्रस्ट के। तो ये ट्रस्ट स्ट्रक्चर मैं क्रिएट कर सकता हूं, एंड आजकल ये काफी कॉमन है। अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं, तो विल अगर आप आज की डेट में बनाते हैं, तो आपके जाने के बाद उस विल के प्रोविजंस किक इन करेंगे, उस विल के प्रोविजंस लागू होंगे। तो एग्जीक्यूशन ऑफ द विल, जो मैं कहना की कोशिश ये कर रहा हूं कि आज अगर आपने विल बनाया, तो आपके जाने के बाद आपकी विशेस को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एग्जीक्यूटर के पास होगी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं, बल्कि आपके एग्जीक्यूटर पे रहेगी आपके जाने के बाद। तो कुछ हद तक कंट्रोल जो आपका एसेट्स के ऊपर है, वो कम हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये विल आपके जाने के बाद एनफोर्स की जाएगी। गिफ्ट एक और तरीका है एस्टेट प्लानिंग करने का। अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी को अब मेरे जीते जी कुछ प्रॉपर्टी दे दूं, तो मैं गिफ्ट कर सकता हूं। ऑब्वियसली एक बार देने के बाद उस एसेट पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता, पर मैं ये इंश्योर कर पाऊंगा अपनी लाइफ टाइम में कि ये एसेट एक एक्स आदमी के पास या वाई आदमी के पास चला जाए। ट्रस्ट में मैं एक ट्रस्ट डीड के थ्रू ओवरसाइट भी कर सकता हूं, कंट्रोल भी एस्टैब्लिश कर सकता हूं, जो कि इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा। मैं ये अपने ट्रस्ट जो मैंने मान लीजिए अपने बच्चों के लिए बनाया है, उसका ट्रस्टी भी हो सकता हूं। तो उस ट्रस्ट एसेट जो मैंने ट्रस्ट पे डाले हैं, मैं कुछ डिग्री तक उस पे कंट्रोल भी एक्सरसाइज कर सकता हूं। अगर मैं एसेट प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं, एसेट प्रोटेक्शन जैसा कि आपको आदित्य ने इनिशियल स्लाइड्स में बताया कि आजकल देखा गया है कि क्रेडिटर क्लेम्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी का क्लेम्स, बैंकरप्सी और इन सब से अपने एसेट्स को बचाना एस्टेट प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है, एक बहुत रेलेवेंट फैसेट हो गया है। एसेट प्रोटेक्शन आपको विल के थ्रू नहीं मिलता, ऑब्वियसली, क्योंकि एस्टेट आपका पार्ट रहेगा विल के थ्रू, तो आपको कोई क्रेडिटर क्लेम या गवर्नमेंट अथॉरिटी या बैंकरप्सी से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा एसेट प्रोटेक्शन का।
गिफ्ट अगर आप किसी को दे देंगे तो जो ईयरमार्क एसेट्स होते हैं वो आप किसी को दे सकते हैं। एसेट प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में आपको बेनिफिट होता है अगर आप एक ट्रस्ट बनाते हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर तरह का ट्रस्ट होता है जो कि इर्रेवोकेबल डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट कहते हैं उसको, अगर आप उस तरह का ट्रस्ट सेटल करते हैं तो आपको एसेट प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। एक इर्रेवोकेबल डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट होता है जिसमें ट्रस्टी के पास एसेट को कैसे बेनिफिशियरीज को देना है उसका पूरा डिस्क्रिशन होता है, और बेनिफिशियरी का उस ट्रस्ट पे या उस एसेट पे कोई राइट नहीं होता है। ये एक स्पेसिफिक तरह का ट्रस्ट होता है जो अगर आप बनाना चाहें तो एसेट प्रोटेक्शन के तौर पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो विल बनाना बहुत इजी है। आप अपने घर बैठे हैंड रिटन डॉक्यूमेंट पे एक विल बना सकते हैं। कोर्ट का सर्टिफिकेशन एज सच नहीं चाहिए होता है। हाउएवर, जैसा कि हमने बात करी, प्रोबेट जरूरी होती है। चैलेंज विल में हो सकता है, और इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई चैलेंज हो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग या रिसोर्स कंज्यूमिंग भी हो सकता है। बट एडवांटेज अगर आप फोर्सी नहीं करते हैं कि कोई चैलेंज होगा, आपकी एक सिंपल इजी गोइंग फैमिली है जिसमें आप कोई डिस्प्यूट फोर्सी नहीं करते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ विल इज relatively easier than other forms of estate या succession planning. गिफ्ट में आप एक सिंपल गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करके गिफ्ट किसी को दे सकते हैं। कोर्ट का कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको उस डीड को स्टैंप करना होगा और आपको उस डीड को रजिस्टर करवाना होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन गिफ्ट का भी इजी होता है। ट्रस्ट के लिए अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आपको ऑब्वियसली एक ट्रस्ट डीड बनानी पड़ती है। वो ट्रस्ट डीड काफी डिटेल्ड होती है। उसमें हर पार्टी यानी कि ट्रस्टी, बेनिफिशियरी एक्सेट्रा, उनके क्या राइट्स होते हैं, उनकी क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो सब डिटेल में लिखा जाता है। उसको भी जैसे विल को प्रोबेट कराना पड़ता है, ट्रस्ट डीड को प्रोबेट या कोर्ट सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। बट ट्रस्ट डीड ड्राफ्टिंग का प्रोसेस और इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस विल से थोड़ा कम्बरसम किन्हीं केसेस में होता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव पे डिफरेंसेस थे। कॉन्फिडेंशियलिटी अगर प्रोबेट विल की हो रही है तो वो विल पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। अमूमन देखा ये गया है कि रजिस्ट्रेशन, सिंपल रजिस्ट्रेशन करवाना विल का, उसको उस डिग्री तक पब्लिक नहीं बनाता है। तो कोर्ट का सर्टिफिकेशन अगर प्रोबेट के तौर पे अगर आपको लेना पड़ रहा है, उसी केस में ये विल एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। गिफ्ट के केस में पब्लिक बनाने की जरूरत नहीं होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट ऑब्वियसली आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट कुछ हद तक हो जाता है। ट्रस्ट डीड को अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो उसको भी पब्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी आपको कुछ हद तक इन तीनों केसेस में कुछ एक्सटेंट तक मिलती है। अगर मैं पर्सनल लॉज की बात करूं, पर्सनल लॉज वो लॉज होते हैं जो एक डिफरेंट सेट ऑफ फेथ, डिफरेंट सेट ऑफ रिलीजन को गवर्न करते हैं। विल के केस में किन्हीं पर्सनल लॉज में रीजन फोर्स्ड एयरशिप रूल्स या फिर कुछ रीजनल लॉज, फॉर इंस्टेंस अगर आप गोवा की अगर मैं बात करूं तो उसमें सक्सेशन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। वहां पे कम्युनिटी प्रॉपर्टी का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि काफी डिफरेंट होता है जो बाकी इंडिया में अवेलेबल होता है उससे। बट पर्सनल लॉज किन्हीं केसेस में एप्लीकेबल होते हैं विल्स में। अगर आप इस्लामिक फेथ को फॉलो करते हैं तो आप 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी एक विल के थ्रू बिक्वीथ अपने टेस्टेटर्स में नहीं कर सकते। हिंदू, सिख, जैन या बाकी जो भी रिलीजन्स होते हैं उनमें पर्सनल लॉज विल को अफेक्ट नहीं करते हैं ज्यादा। गिफ्ट और ट्रस्ट में पर्सनल लॉज का कोई रोल नहीं होता। आप किसी भी फेथ को बिलोंग करते हैं, आपका कोई भी मान्यता हो, आप आराम से गिफ्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट के केस में भी कोई भी जना विल को एग्जीक्यूट कर सकता है, एक ट्रस्ट को भी एग्जीक्यूट कर सकता है। अब हम बात करेंगे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की। जैसा कि हम आपको इस प्रेजेंटेशन में बताते रहे हैं, विल में लीगल फॉर्मेलिटीज के नाम पे सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है। एक सिंपल हैंड रिटन डॉक्यूमेंट आप अपने घर बैठे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक पॉपुलर अगेंस्ट कॉन्ट्ररी बिलीफ विल को स्टैम्प करना जरूरी नहीं होता है। बहुत सारे लोग या बहुत सारे आपको एडवाइजर्स एडवाइस करेंगे कि स्टैम्प डॉक्यूमेंट, आप एक स्टैम्प्ड विल को एग्जीक्यूट करें। आप एक ग्रीन जो जनरली अपन कोर्ट कचहरी में देखते हैं उन डॉक्यूमेंट्स में आप विल को एग्जीक्यूट करें, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अ विल कैन बी अ सिंपल हैंड रिटन डॉक्यूमेंट जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
आप किसी भी लैंग्वेज में एक विल को लिख सकते हैं। अगर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूं तो मैं हिंदी में विल एग्जीक्यूट कर सकता हूं, कोई और इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो वो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, तमिल, पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज में आप एक विल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इनफैक्ट एडवाइजेबल ये होता है कि आप विल को उस लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करें जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है। गिफ्ट के लिए ऑब्वियसली फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर मुझे एक लैंड किसी को गिफ्ट करना है तो मुझे उस लैंड के लिए एक फॉर्मल रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड जिसपे मैं स्टैंप ड्यूटी भी दूंगा उसकी जरूरत पड़ती है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज गिफ्ट में थोड़ी ज्यादा होती हैं। सिमिलरली ट्रस्ट के लिए भी जैसा कि मैंने आपको बताया एक डिटेल्ड ट्रस्ट डीड की जरूरत होती है, एंड बाकी सारी लीगल एंड टेक्निकल फॉर्मेलिटीज ट्रस्ट में रिलेटिवली विल से ज्यादा होती हैं। अगर मैं टैक्स एंड स्टैंप ड्यूटी की बात करूं तो विल में जैसा कि मैंने आपको बताया कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं है एक विल को स्टैंप डॉक्यूमेंट पे लिखने का। इनफैक्ट जैसा कि हमने आपको बताया विल को रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं होती है, सिंपल हैंड रिटन डॉक्यूमेंट इज इनफ टू एग्जीक्यूट अ विल। कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं है विल को एग्जीक्यूट करने के, या कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होंगे एक विल को एग्जीक्यूट करने के। तो विल इज स्टैंप ड्यूटी एंड टैक्स कंसिडरेशन से बहुत फायदेमंद साबित होगी। गिफ्ट एंड ट्रस्ट में ऑब्वियसली स्टैंप ड्यूटी एंड टैक्स कंसिडरेशन होंगे जो आपको ध्यान रखने होंगे, पर वो विल में नहीं होगा। एक लेटर ऑफ इंटेंट एक वैल्यू विल जैसा होता है जो आप एज पेरेंट्स, एक ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बेसिकली सिर्फ ये एक रोड मैप होता है जो आप अपने बच्चों को या आप अपने बच्चों के बेनिफिट के लिए अपने गार्डियंस को बता सकते हैं। उसमें इंफॉर्मेशन आप ये डालें कि आपके बच्चों के बारे में या आपके कोई भी डिपेंडेंट हैं उनकी क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उनका एजुकेशन, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनकी क्या स्किल्स या उनकी क्या एबिलिटीज हैं। आमतौर पे हमने एक लेटर ऑफ इंटेंट उन केसेस या उन पेरेंट्स के लिए रेकमेंडेड होता है जिनके बच्चे या तो माइनर हैं या फिर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन हैं जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है। अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप ये डॉक्यूमेंट को अपने बच्चों के लिए, स्पेशली माइनर चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए रखें। लास्टली मैं बात करूंगा कैसे एक एस्टेट प्लान को बनाना चाहिए। सिंपली ये स्टेप्स हैं जो आप एस्टेट प्लान को बनाने के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, जरूरी है कि डिस्कशन, कम्युनिकेशन आपकी फैमिली के साथ आज शुरू हो जाए। इस सब्जेक्ट को मैं मानता हूं डिफिकल्ट होता है किसी फैमिली के साथ या किसी पेट्रियार्क या मेट्रियार्क के साथ बात करना, पर ये बहुत जरूरी है एंड इसका इंपॉर्टेंस लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि आप अपने मान लीजिए फादर से या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर आपके किसी भी रिलेटिव्स के साथ ये बात नहीं कर सकते हैं तो किसी ट्रस्टेड एडवाइजर को, किसी लॉयर को, किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व कीजिए जो ये बात कर सकता है। डिस्कशन, कम्युनिकेशन फैमिली में होना और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होना बहुत जरूरी है। बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब फिर भी एसेट्स या लायबिलिटीज की एक लिस्ट बनाएं। इंश्योर कीजिए कि पर्सनल एंड सक्सेशन लॉज के बारे में आप ध्यान रखें। आप विल बना सकते हैं, आप लाइफ टाइम गिफ्ट कंसिडर कर सकते हैं उन प्रॉपर्टीज के लिए जो आप विल के थ्रू नहीं देना चाहते हैं। आप ट्रस्टेड एडवाइजर्स जो कि गार्डियंस आपके माइनर चिल्ड्रन के लिए, एग्जीक्यूटर्स एक्सेट्रा अपॉइंट कीजिए। उस प्लान को इंप्लीमेंट कीजिए। जरूरत पड़े तो रेगुलरली उस प्लान को रिव्यू कीजिए और अमेंड कीजिए। जैसा कि अदिति ने बताया, रेकमेंडेड है एन्युअली आप प्लान को रिव्यू करें, आप प्लान में चेंजेस करें। इसके ये इंश्योर होगा कि फैमिली में ऑल इज वेल। प्रैक्टिकल केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे। समय के कंस्ट्रेंट को देखते हुए मैं इसको थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। बात करेंगे हम सबसे पहले एक सिंपल एक आइडियल फैमिली है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। उनके 2 चिल्ड्रन हैं, 18 साल 12 साल। हमने ये 2 एज ग्रुप इसलिए लिए हैं क्योंकि एक मेजर है और एक माइनर है। पेरेंट्स के पास सब्सटैंशियल एसेट्स हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि एस्टेट प्लान को कैसे फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए। हमारी फर्स्ट एडवाइस होगी पेरेंट्स विल बनाएं, दोनों पेरेंट्स विल बनाएं, ताकि एसेट्स जो उनके पास इंडिविजुअली हैं या तो वो एक दूसरे को डिवॉल्व हो या चिल्ड्रन को डिवॉल्व हो। एग्जीक्यूटर को अपॉइंट कीजिए। प्लीज ध्यान रखिए एग्जीक्यूटर वो होना चाहिए जो ट्रस्टेड इंडिविजुअल हो। हम रेकमेंड करते हैं कि एग्जीक्यूटर जो ऐसा होना चाहिए जो आपसे यंग हो, क्योंकि आपके अनफॉर्चुनेट डिवाइस के बाद
he will be called upon या she will be called upon कोर्ट में, या फिर उनको जरूरी होगा कि उन एसेट्स को कैसे देना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एग्जीक्यूटर पे आएगी। पेरेंट्स अपने आप को एक दूसरे को गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं अपने माइनर चिल्ड्रन के लिए। रेकमेंडेड ये भी है कि एक से ज्यादा एग्जीक्यूटर और गार्डियन अपॉइंट हो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आपने मान लीजिए किसी एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किया और अनफॉर्चुनेटली उस एग्जीक्यूटर का डिमाइस आपके पहले हो गया, तो विल में ये प्रावधान होना चाहिए कि कैसे एग्जीक्यूटर जो आपका मेन एग्जीक्यूटर है, अगर वो नहीं हो या फिर कल को वो अब्रॉड चला जाए या उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सही नहीं लगे, तो ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटर, एक ऑल्टरनेट गार्डियन आपकी विल के थ्रू आप अपॉइंट कीजिए, ताकि एक ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपके चिल्ड्रन के लिए कोई गार्डियन नहीं हो या आपके विल के लिए कोई एग्जीक्यूटर नहीं हो। दूसरे कंसिडरेशन ये ध्यान में रखने होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉमिनेशन और सक्सेशन सिंक में हो। मेडिकल सर्टिफिकेट जिसका हमने बात किया, जो मैंडेटरी नहीं है पर एडवाइजेबल है कि आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट एक विल में रखें। आप अपनी स्पाउस को या किसी को लाइफ टाइम इंटरेस्ट भी दे सकते हैं। लाइफ टाइम इंटरेस्ट सिंपली ये होता है कि आप अपने एसेट को किसी को उनके लाइफ टाइम के लिए, उनके लाइफ टाइम के बेनिफिट, उनके लाइफ टाइम के एंजॉयमेंट के लिए दे दें, और उसके उनके लाइफ टाइम के बाद वो आपके जो लीगल एयर्स हैं उनको जाएगा। ये भी एक कंसिडरेशन है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो हम आपको देना चाहेंगे, प्लीज अपने विल को सेफली रखें। एक फाइल बनाएं जिसमें आप अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज के सारे डिटेल्स, स्पेशली इस केस में क्योंकि आपने देखा होगा कि मिस्टर ए एंड मिस बी के माइनर चिल्ड्रन भी हैं, एक माइनर चाइल्ड है, उनकी इंफॉर्मेशन को उस फाइल में जरूर रखें। आपके एग्जीक्यूटर या आपके गार्डियन को ये रेगुलरली अपडेट करें कि वो इस बिल के एग्जीक्यूटर हैं और आपके चिल्ड्रन के गार्डियन हैं। अगर प्रोबेट की जरूरत है तो आपके एग्जीक्यूटर को पहले से ही प्रिपेयर करें, उनको उस रिक्वायरमेंट के बारे में बताएं ताकि हैंडी हो जब अगर ये सिचुएशन आए तो। एक और चीज जो हम रेकमेंड करते हैं, किन्हीं केसेस में मेडिकल या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके बच्चों के लिए प्लीज लेके रखें। इंश्योरेंस प्रोसीड स्पेशली क्योंकि आपके माइनर चिल्ड्रन हैं, इस केस में आपके बच्चे को जा सकते हैं, इसलिए रेलेवेंट है कि आप लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेके रखें। Sachin, just 1 minute. I know कि you have lot of things to cover, but in the interest of time, मुझे लग रहा है कि लोगों ने काफी सारे मतलब क्वेश्चन पोस्ट किए हैं। आई थिंक इट विल बी इम्पोर्टेंट कि उनके क्वेश्चंस को भी हम जो है आंसर्स कर पाए, उसके लिए भी टाइम रहना बहुत जरूरी है। So I think either we can close this or you can quickly finish this particular slide so that we can start question and answer session. Absolutely, ठीक है, fair. मैं इस स्लाइड को 5 मिनट में 2 मिनट में इन स्लाइड्स को रन थ्रू करता हूँ। एक्चुअली ये स्लाइड थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्लाइड में मैंने बात करी है कि अगर आपका एक बच्चा ओवरसीज हो, मिस्टर ए एंड बी, अगेन सेम ही एग्जांपल हमने लिया है, उनका एक बच्चा ओवरसीज हो तो ये एस्टेट प्लान कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। अगर कोई एनआरआई भी है या आपका कोई बच्चा या कोई रिलेटिव एनआरआई भी है तो उसको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं, वो एनआरआई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। अगर वो रेजिडेंट है और उसके बाद एनआरआई बन रहा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो एनआरआई बनने के पहले उसने जो प्रॉपर्टी एक्वायर करी है वो प्रॉपर्टी एनआरआई बनने के बाद भी वो होल्ड कर सकता है, एंड एज एन एनआरआई वो प्रॉपर्टी इनहेरिट भी कर सकता है। एक और चीज जरूरी है, अगर मान लीजिए आपने एक विल बना ली है, उसके बाद आप चाहते हैं वो प्रॉपर्टी बिक्वीत करना या प्रॉपर्टी सेल ऑफ करना, तो आप वो ऑब्वियसली कर सकते हैं। बिक्वीत आपके विल के थ्रू होगी ऑब्वियसली अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेचते नहीं है तो, बट जरूरी नहीं है। अगर आपने आज विल बना लिया और आपने डिसाइड कर लिया कि ये प्रॉपर्टी मेरे बच्चे को ही जाएगी तो आप अपने लाइफ टाइम में उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप उस प्रॉपर्टी को जब भी आपकी मर्जी हो बेच सकते हैं। तो ये एक केस स्टडी इंपॉर्टेंट थी। Yeah, so I think should we start with Q&A? I think we have some questions, so we can probably stop. यहाँ पे हम रुक सकते हैं और Q&A सेशन मतलब शुरू कर सकते हैं, right? So हमारे जो अदर टीम मेंबर्स हैं, आशीष एंड केशव, उन लोगों ने मतलब क्वेश्चंस के कुछ लिस्ट बनाए हुए हैं बेस्ड ऑन जो चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस आए थे। तो आशीष एंड केशव, ओवर टू यू. You can start asking the question. Thank you, everyone. Thank you, Khaitan and Co, for a wonderful, enlightening session. So we have a few questions from our participants that have come up in the chat box. And the first one goes like,
how long is the will valid after the demise of the testator? Uh, should I take this? Yeah, आप बोलिए. Please, Yes. please, बोलिए. Sure, sure. So, the will is valid. There is no validity period for a will. But what is important is that if at all a probate has to be procured, it is always good to do it within a reasonable time. So, as an example, let's assume a will has to be probated. It would always be good to actually apply for the probate within a period of 1 year itself. Going after 5 years or 10 years will make the court ask you a question as to why the delay. So that is an important fact. Sure. Thank you so much. The second one comes up, if the will is not registered or notarized, can it be challenged in the court? Followed by, does a registered will becomes a public document and can a copy of the same be taken by anyone in the public? Okay, so maybe I'll answer your second question first. A will is, even if at all a will is registered, it is a public document in the sense that it is a document which is, which is available at the registrar's office. However, the public cannot essentially go and demand that particular document. So to that extent, both a private trust as well as a will are considered private documents to that extent. But yes, it is available with the registry as such, but cannot be but cannot be really asked for by the general public. Very important to note is that in situations where wills etc. are contested, the court may actually have an application made for the registered copy in a situation where there is a contest as to whether the will has been signed by that person or not. On the registration of a will, very important for you to note is that registration per se does not really provide for a higher level of validation or the validity of the will, right? What registration is really doing is that it is somewhere stamping the fact that yes, it is this person who has actually written the will and this person actually signed the will. So, there are limited grounds, as Sachin mentioned, where, the will can be contested. One of them essentially being that this is not the testator at all. This is not the person who wrote the will. But once it is a registered will document, then in that situation, that question or that particular challenge cannot really be raised. Just to add However, what Vijay is saying, yes. The recommendations or practical tips that we've suggested, it does not make automatically the will a valid document, or it does not make it bulletproof. All it does is it helps in the court litigation from that dispute resolution perspective to have very, very good grounds to win the case that it is a legal valid will. Thank you so much. Third questions, can there be two wills? क्या दो will हो सकते हैं अलग-अलग assets के लिए, और अगर होते हैं तो which one stands valid? No, so there cannot be two wills. Our recommendation will always be that have one will which is absolutely comprehensive. In fact, if we draft a will, we typically have inclusive language because it is important to note, as I said, to include all assets. Also, if you don't have the right number of heirs, yani you say first it will go to son A. If not son A, children of son A. If not children of son A, then son B. If you don't specify these heirs, the property may ultimately, as per Hindu succession law, go to the state. So when we draft it, we always say that make sure all the property is covered. And we always say have one will, which is later in time, that will be valid. That is why if you are preparing two wills, so say in year 1 and after 10 years, another will, in the second will, always make reference to the first and revoke the first one. So everyone knows clearly it is the second one after 10 years that is valid. So your last will, आपकी आखिरी वसीयत ही आपकी valid वसीयत रहेगी. जी, later in time. जो later in time, correct. Fine, thank you. One more, can a HUF property be can be a part of the will? Like HUF property which I am part of can be mentioned in the will, and will it stand valid? Okay, so here I would say that, when you are talking about an HUF property,
it is important to note that you can only talk about your share in the HUF itself, and you cannot really talk about the underlying property. But yes, whatever, if you want your HUF, assets to go, your HUF share to go in a particular manner, you can always mention that in your will. Okay. Hindu succession laws allow for you to ensure that your share is included in the will. Sure. Ashish Maheshwari? Yeah, thank you. Thank you, Ketan and company and the team for such a lovely session with a lot of insights. We had a very interesting question when Keshav was talking about HUF property. We had a very interesting question which had come to us via email. A lot of them speak about property which typically they relate to immovable properties. So the question was, how can we talk about IPR, patents, and digital assets? How do we consider them in the will? Yeah, so, with respect to digital assets too, to the extent that they are really owned by the testator himself, you can actually, provide for the entire succession in the will. And it has become something which, we have seen, questions being raised on. Interestingly, Ashish, I would say here is that, the understanding internationally is much more known than in India. But yes, you can have, digital assets. And in fact, there are also registries which actually maintain the entire succession of digital assets. Sure. This is one basic query. I guess it has also been answered, but people have, kind of also requested for this to be answered again. And the query goes like, can the will be amended? Everybody knows about it, but how often can it be amended? Is there any restriction in terms of number of times it can be amended? And what are the guidelines to the same? Okay, so, a will can be amended as many number of times. What we will only, suggest is that, at that point in time of amendment, one is, of course, there should never be a question of, somebody doubting the, the sanity of the mind, right? There should not be anybody who can really doubt coercion or, a person who's not able to really think through. Another very important point which we would generally suggest is that if at all your one will is a registered will, try and ensure your subsequent wills, which are amending the registered will, are also registered. Because what will really happen is that, when a person wants to contest the will, they will essentially tell the court that, look, this person was a person who actually followed great legal detail. And the fact that he got his first will registered, we should look at that, and the subsequent wills are perhaps just made up by someone. So which is where we will always suggest that though you can make as many wills as you want, there is no issue whatsoever. And of course, only those basic criteria of writing a will needs to be taken care of. However, having said that, if at all your first will or any of the wills have been registered, any subsequent amendment, though it is not a requirement in law that you need to register an amendment, but we would always say it is wise to do that. Sure. The successive bills also need to be registered. Amendments need to be registered because the previous one was registered. Okay, so Ashish, just a clarification, it does not need to be. So it's not a legal requirement, but it is good to do it. Practical. Okay. Yeah. So there was a query related to हम कितना complex कर सकते हैं will को, as in, so what kind of conditional clauses can we bring in? Can we bring in if this happens, so and so the conditions are if only such fulfillment conditions happen or occur, then only the will would be executed, or this part of the will could be executed. Is there any limitations to putting in those conditional clauses, या ऐसा कुछ नहीं है? आपको मतलब जिस way से आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं? So as such, you can write it in whichever way you want. You can make it as complex as you really want. But always remember that when we make a document complex, we must ensure that it is very well drafted. Because sometimes what happens is that the more complex you make, or the more, permutations and combinations which you try to add, it just makes the language of the will so complex that it is very difficult for the executor to really understand. And I think most important we should note is that, generally people look at a will as, a real time pass document. They never really pay that attention. You may get your best lawyer to draft an M&A deal of your sale of a company, but you may actually just go to a very simple person to draft a will.
And I would always say that actually you should always look at the reverse, for the simple reason that a will is one of the most complex documents because you are actually proving it when the person who wrote it is not alive. So there is a lot which is just going on surmises, on presumptions, etc., which is where a clearly documented will is always something which we would suggest. But you are absolutely right. There will always be permutations. Like, for instance, if at all, say a parent wants to give it to a particular son, and let's assume for whatever reason the son predeceases the father, right? So you may just say that, okay, if the son is not there, at the point in time of father's demise, then it goes to his children or it goes to the other child, etc., etc. So you will have those permutations, combinations. To the extent that you're looking at a conditional bequest, right? Be careful as to what you're really putting the condition as. Obviously, the condition can never be an illegal condition. But even with respect to a conditional bequest, be careful in the sense that, if you're going to be writing that, I want this property, let's assume a husband writes a will to say that I want this property to go to my son, only if at all post 5 years of my demise, my son looks after my wife, right? Now, if you look at something like this, you're not really ending the execution process, because now the executor is going to sit on judgment as to whether he's taken care of the mother or not, right? Yeah. So if you're looking at it, making it conditional, just be careful as to what conditionalities are being made so that it is not subjective. You have objective criteria to ensure that, to ensure that it is being, it's being fulfilled. Like, I'll give you an example. In one situation, we had a case where, in fact, interestingly, from Chennai itself, wherein a patriarch had actually given a personal guarantee. And, with respect to a particular property, what he wanted to do is to say that, look, if at all the PG has not got triggered, but yet that loan is alive, I want this particular asset along with the personal guarantee obligation to actually go to X person. Now that, if you look at it, it is absolutely fine, because under law, you cannot as an heir say, I only want assets and no liabilities. If you are inheriting, you will inherit both together. Both together. Yeah. Sure. But thank you Just for to that. add on to Bijal, I mean, we had both interestingly advised a case where one property was split into so many parts and there were so many mathematical formula and equation that at the end of it, every week or so, we had to get on calls with the family to explain the process again. So what we would suggest is the simpler, the better, of course. And if it is immovable property, try not to make it too complex, because at the end of the day, you don't want one house or one property being owned by, fragmented, being owned by 10 people. So then whenever there's a sale or, any lease or any rental has to be picked up, you have to go to 10 different people and get your permission. Okay. So there is also a query, as in, so a lot of people would like you to share some light on if there are certain famous cases which you have been part of, wherein either people have died interstate or there have been some complications with respect to the will. Would you like to share some light on that? So of course, discretion is key, so we won't be naming anyone, and of course it's all on a no names basis. But some of the I would say some of the interesting cases that Bijal and I and Sachin have had the the experience to see and draft are, of course, in one case where the promoter of a venture capital business, very up and coming young promoter, by chance, a freak accident, unfortunately passed away, was survived by minor children and his wife and mother, and had not prepared a will. So in that case, of course, we had to, split the property and the businesses as per the Hindu succession laws, which I mentioned. Class 1 is each of them got 1/4 share. The property of the minors will be secure, provided to court as surety. So, if it is shares of a company, now if it is real estate, okay, it's easy to value, etc. But the real value of a business is the promoters and, how you're running the company, especially if it's unlisted. So it was interesting to see how, we sort of swapped assets to, tell the court that you please take this property instead, release the shares of the company. We will take care of the children.
and then, sort of the business went on through. And then when we drafted the will for the wife, we made sure that these considerations and these factors were well taken care of. So, just to add to what Aditi said here, I would always say that, very often clients will ask us is that, as to what is the perfect age to make a will. And, generally people, it's a document which obviously somewhere, takes you back. It does not make you feel happy and good about doing, right? Because you're writing about something which is not something which you really wish to happen. Now, we would always suggest that, making a will, as to however basic it is, with respect to assets, is most important. And why I would say this is because, if there are minor children involved, the court essentially, it's a very beautiful, judicial system with respect to heirship, which we have in India, wherein if at all a minor is involved, the minor share is taken in as security by the court and is released to the minor only when he or her turn 18 years of age, right? Now, you could imagine in situations where, let's assume, there is not that much of an estate, right? It is a small amount of wealth you're really talking about. For it to be locked in by the court, right, becomes very difficult for the surviving spouse to actually take care of the family. So to that extent, very important that however basic the document is, does not matter how much the wealth is, but always good to actually have that particular document written. And yes, you always have a provision where you can keep amending it. So you can always keep doing that, but that basic will structure should always be in place. Another, I would say, very important, point, and perhaps, I mean, this is of course, a public case, of the Priyambada Birla case. And I think, I would say the biggest learning lesson in that particular case is the fact that, very often, you will write in a will, and it's a very casual way of writing to say, like, if I'm writing a will, I will say that post me, I want this property to go to my husband, and post my husband, I want it to go to my children, right? Now, what you have done in this particular, and this sounds very simple language, right? There's nothing, it doesn't sound complex or it doesn't sound convoluted at all, right? Because it's obvious. I mean, you finally wanted to go to the children. But what you have done here is that you have created a life interest for the husband. What that really means is that the husband can only enjoy the property, but he cannot deal with the property as is his own. So as an example, he can never sell the property. He can never say in his will, I wanted to go to, say he has, my mother, or he wants to write somebody else's name. He can never change that because this was my property, which I have written who the end successor is, right? What happened in the Priyambada Birla case was exactly this, wherein it went from husband to wife, and it was supposed to go from wife to another trust. But the wife never realized she had only a life interest, and she wrote another will to say it will go to another person, right? Now, obviously, that particular will was challenged because, she could not write a will. She actually had no disposing capacity itself because it was never hers. She was only supposed to enjoy that property. So I think this is very important to note that sometimes we feel this language is very straightforward, but actually what you're really doing is you are creating a chain around, that particular person, that person cannot really use that property for his own benefit in the sense of selling the property, etc. So I think this life interest is a very important, point to note. Maybe a third one, and of course, then I will request Sachin because he's also had very interesting, situations of wills and clients, on contest. But another, I would, point I would always say is that if you're writing, if the person's will, if the person who's writing a will has, say, global assets outside of India, always important to ensure that there are different wills for each jurisdiction. And it is not that it is a legal requirement. In fact, under the rules of private international law, a will has to be respected in every other jurisdiction. But always remember that if a will requires a probate, in any jurisdiction where a probate is required, it is not a very straightforward process. So you do not want a situation that a person has property, say in India, has in UK, has in US,
and you stake out the probate application, say first in the Bombay High Court, it takes another 2 years here or 1 year, whatever period of time, and only post that assets which are in the UK and in the US, you are able to actually go to those courts and do the succession. What is always good to do is to have different wills for different jurisdictions based on wherever the assets are, so that you are in a position to run the probate process in a parallel manner. Sure. Sachin, would you like to share some experience on that? Sure. We've had, I have advised honestly on a couple of matters which became a little controversial. अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो हमारे क्लाइंट जिसको हम एडवाइस कर रहे थे, उन्होंने आज मान लीजिए एक बिल बनाया, और बिल बनाने के मान लीजिए कुछ दिन बाद उन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसके थ्रू उस कॉन्ट्रैक्ट को टिपिकली फैमिली सेटलमेंट कहा जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट पे एक फैमिली सेटलमेंट बनाया जिसमें सारी फैमिली ने अग्री किया कि उस फैमिली कैसे अपने एसेट्स को डिवाइड करेगी। क्वेश्चन जब उस इंडिविजुअल की डेथ हो गई तब ये आया कि क्या फैमिली सेटलमेंट को प्रीसिडेंस दिया जाएगा या फिर एक बिल को प्रीसिडेंस दिया जाएगा। तो ऐसे केसेस में भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमने एक केस स्टडी के बारे में भी बात किया, आपको ऑलवेज इंश्योर करना चाहिए कि आप अगर बिल में कुछ एसेट लिख रहे हैं तो उस एसेट को आप बाद में कैसे ट्रीट करते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होगा, और उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना एस्टेट प्लान बनाएंगे तो वो बेनिफिशियल रहेगा। फॉर इंस्टेंस एक और क्लाइंट था जो चाहता था कि, हमने उसको एक केस स्टडी के हिसाब से भी किया था, एक क्लाइंट चाहता था कि कुछ गिफ्ट वो अपनी बेटी को उसके लाइफ टाइम में दे, एंड उसकी डेथ के बाद सारा उसका जो सन है उसको वो पूरे एसेट्स, उसको वो पूरी प्रॉपर्टी बिक्वीथ करे। एसेंशियली उस क्लाइंट ने ये किया कि उसने अपनी बेटी को उसके एस्टेट एंड सक्सेशन प्लान से एकदम हटा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उस क्लाइंट ने अपनी लाइफ टाइम में एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एसेट अपनी बेटी को दे दिया था। तो इंपॉर्टेंट इस केस में ये है कि आप अपनी विल में ये मेंशन करें कि मैंने अपनी बेटी को ये एसेट मेरे लाइफ टाइम में, एक सब्सटेंशियल एसेट अपनी लाइफ टाइम में दे दिया है, इसकी वजह से मैं अपने बेटे को बाकी सारा एसेट दे रहा हूँ। इससे दो चीजें होंगी, पहला आपका जो एग्जीक्यूटर है उसको ये बात पता चल जाएगी कि दोनों में सो टू से एक इक्वल डिवीजन है, और अगर आपकी बेटी या कोई भी एक्स पार्टी या थर्ड पार्टी जिसको आपने एसेट अपनी लाइफ टाइम में दिए हैं, अगर वो चैलेंज भी करता है कोर्ट में कि नहीं मैंने तो एक्स आदमी का बहुत ध्यान रखा, मैंने उनकी बहुत सेवा करी, या उसके लिए मुझे एसेट मिलना चाहिए था, ये बिल फ्रॉड है या बिल कोर्जन में है, तो उस बिल में आप ये सारा सब कुछ नोट कर दें, आप उस सारा सब कुछ डिटेल में लिख दें, ताकि आपकी आने वाली जो एग्जीक्यूटर है और जनरेशन है उसको ये प्रॉब्लम नहीं हो। So these were a couple of instances where we thought dispute situation arise, इसलिए बेटर है कि आप उसको ध्यान में रखें। Thank you. Because I just think, considering time, one frequently asked question which has been coming to me on WhatsApp is क्या इस प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि आप एम सर्कल के यूट्यूब चैनल में जाइएगा, इट इज़ M M सर्कल, एंड वहाँ पे हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे कई प्रोग्राम्स वहाँ पे डालते हैं। So next 24 to 48 hours, you will find this recorded video into the YouTube channel of ours. Please subscribe and also press the bell icon. It feels like so many times I hear recordings. This is a very normal statement. So with that, maybe we should conclude, but thank you so much again, Vijal and Sachin, as well as Aditi. But yes, Ashish, one last question and we then hand it over to Vikas, I guess. Yeah, great. So yeah, in the interest of time, maybe one or two more last questions. We have too many, as in so Vijal, Aditi, Sachin, as in so we have loads and loads of questions, and they're coming in also as we speak. But we'll just restrict it. Be happy to take them offline. I mean, feel free to email us, and we'll be sure to have an offline discussion. We'll definitely do that. I'll just maybe one or two last questions, and because this is from the second half of the presentation what you gave in, typically with the gift and the trust aspect. So the question is, as in, I'm just trying to consolidate all the questions. एक साथ मैं सबके questions को मिला के बोल रहा हूँ. So 2-3 questions रहेंगे ये. Questions है gift के लिए. पहला है कि will और gift deed में कौन सा easy execute करना? And if I have to gift a HUF property outside the family, is it possible, and how do I do that? Okay, so very quickly to state here is that
a will and a will or a gift are not really alternates. And I would say the reason for that is that a gift is something which you are actually giving up in your lifetime, and you don't have control or economic interest left in that property at all, right? So when you're choosing between a gift or a will, choose very, very carefully, because it should never be a situation where the person gives off all the property and actually does not have that property, or does not have enough wealth to sustain all their lifetime, right? With respect to a gift, depending on the type of gift which is being made, in the sense of the nature of the property which is, going under the gift, the stamp duty considerations could be very different. Of course, on a will, there is no stamp duty to be paid at all. As Aditi mentioned, it's, written on a plain piece of paper. And, but of course, in a gift, depending on the type of property, like as an example, if at all it's real estate, right? There would be a stamp duty like a conveyance, or a little lower than a conveyance, depending on the state where the real estate is situated. But if, for instance, if it is, say, pure, I would say movable property, then in that situation, there could be some movable property which could just be transferred by way of delivery. And there may not really be any stamp duty consequence there. So that would be the difference between a will and a gift. Okay. Other one, and this is the last Okay. question, what we are going to take, the last question per se, as in, so I understand again, just maybe people, it's for your benefit, and because you have been asking us all these questions, is on the trust part. As in, so the question is, can assets जो assign होते हैं trust से, can they be sold by legal heirs for any profit? और एक और question इसी type से आया था, which was, if there's a property in the name of a trust, can the head of the family divide that in his will, is or her will? Aditi, would you like to take that? Sure. Okay, so just drawing from what Bijal said, even a trust arrangement is something that is done in your lifetime. So when you create a trust, so let us say I have 100 rupees, I have created my trust, I have put that 100 rupees into that trust. Now that actually belongs to the trustee of the trust, and the trustee can only use that 100 rupees for the benefit of the beneficiary. So let us say A, B, and C. After, of course, the person who's putting into, I can also be named as a beneficiary, but to, very simply give you a simplistic answer on the facts, no, anything that goes into a trust, even if you write it in the will, the law, and at the time of my demise, the will be read down. All my lifetime transactions will first be considered. Whatever is left, so if I have 100 rupees, and that has already been put into the trust, that 100 rupees will not be treated as part of my will. एसेंशियली अदिति जो कहने की कोशिश कर रही है वो ये है कि अगर आपने अपने लाइफ टाइम में कोई भी एसेट किसी भी तरह से किसी को भी दे दिया है, या तो ट्रस्ट के तौर पे या गिफ्ट के तौर पे, वो आप अपनी विल में, अगर पार्ट है भी आपके विल का, तो वो विल उस एसेट के रिस्पेक्ट में मान्य नहीं होगी. सिंपली पुट, आदित्य ये कहना चाह रही थी, आपके पास अगर 5 तरह के एसेट हैं, आपने 3 तरह के एसेट अपने लाइफ टाइम में मान लीजिए बेच दिए हैं, तो 2 ही तरह के एसेट आपके विल के थ्रू जाएंगे, और बाकी 3 तरह के एसेट जो आपने लाइफ टाइम में डील कर लिए हैं, वो आपके उस लाइफ टाइम एक्शन के थ्रू डील होंगे. Yes, with that we wrap up the Q&A. And yeah, so I think questions and then काफी answers भी है. Right, so I think ask Ashish Maheshwari to now give the the vote of thanks, because we had decided 5:30 I think we will close, but already I think we are 5-7 minutes already we have prolonged. So I will ask now Ashish Maheshwari to kind of give this vote of thanks, please. Yeah, thank you Vikash. Thank you everyone. ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है. It is indeed a privilege for me to acknowledge the contribution and support of all those people who have left no stone unturned in making sure all of us here get the benefit out of this indeed enriching family program. आज का हमारा ये सेशन काफी जानकारीपूर्ण था, एंड मुझे ये पूरा विश्वास है, काफी विश्वास है कि हम सभी को इस सेशन से, इस फैमिली प्रोग्राम से
कुछ सीखने को, कुछ समझने को जरूर मिला है। एंड हम अच्छे से ये कह सकते हैं कि हम इस सेशन से जब हम वापस जा रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, वी आर गोइंग बेटर प्रिपेयर्ड, वी आर गोइंग बेटर इन्फॉर्म्ड, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव था इस सेशन का। मैं कुछ मैसेजेस जस्ट टू समराइज, काफी इनसाइट्स थे पूरे सेशन में, बट मैं कुछ मैसेजेस, कुछ चुनिंदा मैसेजेस को अंकित करना चाहता हूँ। एंड ये मेरी एक कोशिश है, क्योंकि पूरा का पूरा सेशन वाज सो इनसाइटफुल विद सो मेनी प्रैक्टिकल टिप्स। मैं ट्राई करता हूँ कि एक दो कुछ मैं बता सकूं। तो हमने आज विल के बारे में, एज इन कब बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, किसके लिए बनाना चाहिए, कहाँ बनाना चाहिए, और क्या फायदा है, अगर नहीं बनाएंगे तो क्या नुकसान है, क्या लिखना है विल के बारे में, ये सब चीजें के बारे में हमें जानकारी मिली। हमें जो लीगल स्ट्रक्चर है इंडिया का, जो लॉज है विद रिस्पेक्ट, इवन जो अभी जो चेंजेस हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस, इसके बारे में भी जानकारी मिली। जो फॉर्मेलिटीज है, रिक्वायरमेंट्स है विल को बनाने के लिए, और स्पेशली क्या, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारी एमिनेंट टीम ने, जो पैनलिस्ट ने हमें बताया कि क्या प्रैक्टिकल टिप्स है, क्या इनसाइट्स है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपके विल चैलेंज नहीं हो, कोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उन सब के बारे में भी जानकारी मिली। और ऑफ कोर्स फिर लास्ट में हमें ये भी पता चला कि विल इज नॉट जस्ट द मोड ऑफ एस्टेट प्लानिंग, देयर आर अदर मोड्स एज वेल, गिफ्ट हो, ट्रस्ट हो। तो ये सारी की सारी चीजें, एज इन सो ये कुछ चुनिंदा चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिली। मेनी मोर रिकॉर्डिंग, जैसे आशीष जवर जी ने बताया, रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल में रहेंगी, एंड आपकी बाकी क्वेश्चंस भी हम एड्रेस कर पाएंगे। So on behalf of the organizing associations, Shri Maheshwari Sabha Chennai and M Circle Chennai, I express my deep gratitude to Ketan and Co. and their eminent and knowledgeable panelists, Bijil Ajinkya, Aditi Sharma, and Sachin Bhandawar. Thank you so much for taking some time out, accepting our request despite your busy schedule, and sharing your experiences and knowledge with us. Your real life examples, those anecdotal evidences, as well as those practical tips were extremely useful and insightful. Thank you so much. जैसे हमने highlight किया पहले, as in we had an exceptional turnout this Sunday evening. Sunday evening is usually not too easier time to get people, but we had an exceptional turnout, and ये possible नहीं हो पाता without the untiring efforts of the team of Shri Maheshwari Sabha Chennai and M Circle Chennai. So मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ टीम का, और especially leaders of these association, Shri Pramod ji Malpani, and President Shri Maheshwari Sabha Chennai, Shri Kamal ji Mehta, Secretary Shri Maheshwari Sabha Chennai, and उनकी टीम, Shri Ashish Jawar ji, President M Circle, and Shri Keshav Mundra, Secretary M Circle, Shri Vikas Sharda, HR Director M Circle, and the team. मैं बड़ा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लीडर्स के दिशा निर्देश और सहयोग के कारण ही ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हो पाया। आज के इस फैमिली प्रोग्राम में उपस्थित सभी महानुभाव, सभी गेस्ट, सारे एसोसिएशन के मेंबर्स एंड उनके फैमिली मेंबर्स, स्पेशली क्योंकि फैमिलीज हैव जॉइंड इन लार्ज नंबर्स, तो मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और हमारे प्रोग्राम की मान बढ़ाई। आशा करता हूं कि ये प्रोग्राम आपके लिए लाभदायक हुआ होगा, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। With that, we come to a close of today's family program, and thank you one and all. Thank you for making this such a huge success. Thank you to Ketan and Co. and the organizing associations. Wish you all great health and happiness. Thank you. Thank you. Thank you.